तो अगर हम इन सब अलाउंसेस को ऐड करेंगे सो इट विल बी इक्वलेंट टू 18.5 lakhs. So hello everyone. So I was getting a lot of queries in the comment section of my YouTube channel and in Telegram group regarding the various perks and allowances in the SBI and the bifurcation of 18 lakh per annum package of SBI as discussed in the recent notification. So ये वीडियो आज उसी के ऊपर है. So इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी वो पुरानी वीडियो जिसमें मैंने SBI SOIT की सैलरी स्लिप शेयर की थी जो न्यू ज्वाइनी था स्केल 1 में इसी जनवरी मंथ की, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वो देखें क्योंकि उसके आगे से ही ये वीडियो कंटिन्यू होगी. सो आपने उस सैलरी स्लिप में देखा था कि उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी आई थी लास्ट में 76,807 रुपीज़. ओके, सो ये होगी पर मंथ सैलरी. सो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट विल बी इक्वलेंट टू 9,21,684 रुपीज़. ओके, सो इसमें हमें रेंट कितना मिलता है मुंबई में मैंने आपको बताया था. जो लेटेस्ट वीडियो है मेरी लीज एकोमोडेशन की, आप वहाँ जा सकते हैं. जो मेरी वीडियोस हैं वहाँ पे आप दिखेगा आपको लीज एकोमोडेशन की एक वीडियो होगी. उसमें थी कि रेंट मुंबई में कितना होगा 34,000 और सब अर्बन दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, मुंबई एंड सब अर्बन. तो मुंबई में 34,000 था तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल बी इक्वलेंट टू 4,08,000 रुपीज़. ओके, so there are various allowances also, 5 in 1 one kind of allowance is there in which 5 various items are there, like one is labor, entertainment, cleaning, newspaper, conveyance and mobile bill. Entertainment is paid differently, so if you include entertainment also it will be 6 in 1. So the labor charges which you get every month is 1125 rupees. Entertainment is 1375 rupees. Cleaning charges it's 1100 rupees. Newspaper is 750 rupees per month. Conveyance is like if you have a 4-wheeler you will be paid 65 liter petrol per month, and if you have 2-wheeler it will be 55 liter petrol. And if you have don't have the 2-wheeler and 4-wheeler you will be paid something in between 1,000 and 2,000 rupees. Okay, so if you multiply it by the price of the petrol in Mumbai, so currently they are paying it at the price of 110 point something rupees. Okay, so this month I got 7,179 rupees petrol for 65 liter. So if you combine all the 6 in 1 allowances it will be equivalent to 12,829 rupees per month. So if you multiply it by 12 like for a whole year it will be equivalent to 1,53,948 rupees. So in SBI we have provident fund also, deduction is there. Like you have seen in the previous video in SOIT salary slip, it was like in SBI only there is a PF deduction, because in any other bank there is just NPS, but in SBI it is both PF plus NPS. So if PF is the 10% of basic pay deduction. Okay, so basic pay is 48,480 rupees, so it will be like 4848 per month. So it was got deducted in the gross salary, so I won't consider that, but bank also pays 10% in addition. So if you multiply it by 12 it will be equivalent to 58,176 rupees for 1 year. NPS is 10% of basic plus DA. So per month it was like 5,809 rupees. That was the deduction which we have seen in the SBI SOIT salary slip. So in addition SBI all the banks, SBI including other banks, they pay 14%, but in PF they pay just 10%. So 14% of this NPS is 8,132 rupees. If you multiply it by 12 it will be 97,590 rupees. So if you calculate add all the things that I have discussed, it will be equivalent to 16,39,398 rupees, which we can say that 16,40,000 approx. Plus there are various type of allowances also which will be paid every year at the starting, like on the start of the financial year, like 1st of April it will be paid. Like you can claim anytime, but if you want to claim it on the first day itself then also you can do that. Like we have utility allowance, like for it is 4,500 rupees. Utility like various basic needs items you want to purchase, they pay 4,500 rupees for scale 1.
We have pest control also. If you want to do pest control, every year SBI pays 1100 rupees. And if you have taken the furniture allowance, then you will pay 13,700 rupees furniture maintenance. To maintain that furniture also banks pay maintenance, but in SBI it is 13,700. So if you add all these three allowances also, it will be like 16,58,398 rupees. Okay, so it's this much, but you must be considering that it was 18 lakhs. So there are other allowances also, so just relax a bit. We have LTC and STC allowance also, which is paid every 2 years in a block of 2 years. Every bank pays that. LTC is like लीव ट्रेवल कंसेशन. सो LTC हो गया जैसे कि आपको कहीं घूमने के लिए जाना है अपनी फैमिली के साथ. फैमिली इज लाइक डिपेंडेंट ओनली. आपको डिपेंडेंट्स और आपको कहीं घूमने जाना है तो बैंक आपको पे करेगा अबाउट अ सर्टेन लिमिट. ओके, इन स्केल 1 द लिमिट इज लाइक 24,000. सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट कि आप किसी भी फर्स्ट क्लास AC ट्रेन में जा सकते हैं. फ्लाइट में नहीं जा सकते बट फर्स्ट AC ट्रेन में जा सकते हैं. तो उसी का आपको मैक्सिमम किराया मिलेगा. फर्स्ट AC में आपका राजधानी, प्रीमियम ट्रेन कुछ भी हो सकती है, वंदे भारत, राजधानी एटसेट्रा एटसेट्रा. और आप कोई भी रूट लेके जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप फिक्स रूट है आपका, आप कहीं भी रूट लेके जा सकते हैं. लाइक आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट में तो आप पहले दिल्ली से जा सकते हैं, दिल्ली से आगे वहाँ पे जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, फिर वापस आपको रिटर्न ऑफिस आना है. बट इन STC इज द होम ट्रेवल कंसेशन. लाइक ये आपको तब मिलेगा जब आप घर जाओगे. आपको 2 साल में अगर कहीं बीच में घर जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. इसका भी अमाउंट फिक्स है, अप्रॉक्सीमेटली 24,000 समथिंग. ये भी फर्स्ट AC का आपको मिलेगा ट्रेन का. LTC में क्या है कि आप नहीं, अगर आपको जाना है मतलब आपको ट्रेवल नहीं करना है, आप उसकी एनकैशमेंट ले सकते हैं. तो एनकैशमेंट अमाउंट इज 10,000 पर पर्सन डिपेंडेंट. इफ यू हैव डिपेंडेंट ऑल्सो यू कैन क्लेम 10,000 फॉर दैट ऑल्सो. सो बट इफ यू वांट टू क्लेम द बिल, अगर आपको बिल क्लेम करने हैं, अगर आपको सच्ची में जाना है और आपको बिल से क्लेम करना है तो आपको मैक्सिमम 24,000 पर पर्सन मिलेगा. ओके, तो STC में क्या होगा कि आपको अपने घर तक तो जाना ही पड़ेगा. एक बार जैसे भी आप जाइए आपको घर तक जाने का आपको शो करना पड़ेगा कि आप घर होके आए हो. ठीक है. और इसके अलावा कौन से अलाउंसेज हैं? ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है SBI में. फॉर स्केल 1 इट इज लाइक 4,000 रुपीज एवरी 3 ईयर्स. हर 3 साल में आपको एक बार 4,000 रुपीज का ब्रीफ केस अलाउंस मिलेगा. एक स्पेक्टिकल अलाउंस है 6,000 रुपीज पर 3 ईयर्स. लाइक जिनको भी आई साइट की थोड़ी प्रॉब्लम है और स्पेक्टिकल्स लगा होगा तो 6,000 रुपीज मिलता है एवरी 3 ईयर्स. SBI वी हैव मोबाइल अलाउंस ऑल्सो टू परचेज अ न्यू मोबाइल. आपको मोबाइल चाहिए तो आपको 10,000 प्लस एप्लीकेबल GST जो उसके ऊपर होगा वो मिलेगा एवरी 2 ईयर्स. हर 2 साल में एक बार. पहले 3 साल होता था बट ये लास्ट ईयर ही 2 ईयर्स हो गए. तो इसके अलावा आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है. लाइक आपको फर्नीचर बाय करना है, उसके फर्नीचर में सिर्फ फर्नीचर नहीं आएगा, मैट्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सी आइटम्स हैं. अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी मिलेगा. सो अमाउंट इज इक्वलेंट टू 1,80,000 प्लस एप्लीकेबल GST, जो भी इसका GST होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पे GST अलग होता है, मैट्रेस पे अलग होता है और फर्नीचर पे अलग होता है. ठीक है. तो कुछ आइटम्स जो इसमें होती हैं लाइक मैट्रेस, इन्वर्टर बैटरी, वो होती है 3 ईयर्स के लिए. तो एवरी 3 ईयर्स वो रिन्यू होता रहेगा. कुछ आइटम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आइटम्स हैं वो 5 ईयर्स के लिए मिलेंगी. मतलब 5 ईयर्स के बाद आप फिर से क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 1,80,000 में से ही कुछ पार्ट डिवाइड हो रखा है टू बाय लाइक मैट्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वुडन फर्नीचर. सो वुडन फर्नीचर के लिए आपको 10 ईयर्स का टाइम मिलता है. 10 ईयर्स के बाद आप फिर से क्लेम कर सकते हैं. और इसके अलावा आपको मिलता है शिफ्ट अलाउंस. अगर आप IT में हैं तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो शिफ्ट में ही वर्क करते हैं, लाइक मॉर्निंग 6 to 2 या 7 to 3 या 3 to 11 या 2 to 10. तो कुछ नाइट में भी काम करते हैं. तो उनके लिए शिफ्ट अलाउंस क्या रहता है? 500 रुपीज़ पर डे. तो अगर हम होल टाइम आप शिफ्ट में रहते हैं अगर पूरे मंथ, तो आपको 8 to 10,000 आपका वो भी पर मंथ कैलकुलेट होगा, ऐड होगा अपनी सैलरी में. तो जितने भी अलाउंसेस हैं बेसिकली इतने ही अलाउंस होंगे. कुछ 1-2 एक्स्ट्रा होगा, अगर वो कुछ मेरे को याद आया बाद में तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. तो अगर हम इन सब अलाउंसेस को ऐड करेंगे सो इट विल बी इक्वलेंट टू 18.5 lakhs. सो दैट इज व्हाट SBI सेज दैट सैलरी ऑफ
स्केल 1 इज 18 पॉइंट समथिंग लैक्स पर ईयर। सो आई होप आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं जिसमें मैंने SBSO IT की सैलरी स्लिप डिस्कस की है वो भी आप देखिए, और लीज एकोमोडेशन के बारे में भी आप देखिए, क्योंकि उसमें आपको पता लगेगा कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको कहाँ कहाँ पे घर ले सकते हैं आप, और कितनी लिमिट में ले सकते हैं, और कैसे आपको मतलब अप्रोच करना है ब्रोकर को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।